Welcome all dear students and doctors in Ayurveda Dhyan e-lecture series, and it's the fifth lecture. In this we will going to study Agnitundi Vati. In previous lectures we have learned about Arogyavardhani, Chandraprabhavati, Sudshekar and Arshakuthar Ras. So let's start today's session with Dhanvantari Stavan. ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः. So concerned with this reference, Agnitundi Vati has mentioned in is mentioned in Bhaishya Ratnavali, Agnimandya Rogadikar and Sharandhar Samhita. So it's two references, that is Rasachandashu and Sharandhar Samhita, and we'll go to the ingredients. That is, major ingredients are Paragandhak, that is Shuddha Para, then Shuddha Gandhak, it's Kajjali, Shuddha Vatsanab, Ajamoda, Trifala, Chitrak Mool, Kuchala Churna, Sendhav, Jirak, Sovachal Lavan, Vidanga, Samudra Lavan and Trikatu. So it's how much part they are taken we have mentioned in this slide. So we'll go to the next slide to learn detail in each ingredients. First is Kajjali. So is Rasakalpa, it's a Khalvi Rasayan. So you know the importance of Khalvi because we are mentioning in each lecture, because Kajjali is all Rasakalpa we are taking. So Kajjali, Jantugna, Rasayan, Yogavahi. Next important kalpa, the important ingredient, that is Kuchala. Kuchala is Ushna Vyavai Vikasaktam Dravya. It's a good Agni Deepak. It's also a Vedana Shamak Dravya. It gives Balya activity to Vata Vahini and give nerve tonics, we can say. It's a Yoga Vahini Dravya. Next ingredient, that is Vatsanab. Vatsanab is a Visha Dravya, but we have to use in Shuddha Vatsanab. It's a Visha, Tikta Katuna Ushnadra property had. It's a good Amapachak and Vedana Shamak. So Kshar, that is Samudra Lavan, that is, and these all Shar and Lavan we are used here as Agni Deepak, Anulomak and Vishashamak. So another important ingredient, that is, we can see here the picture of Chitrak Mool. So Chitrak Mool is property known Vel Agni Deepan, Pachan and Ushna and Trikatu. Trikatu is Katu, Ushna and Madhur Vipaki. It's a Shula Prashamanan Dravya. Vidanga, Katu Rasatmak Dravya, Katu Vipaki and Ushna Viryatmak. It's known is for generally Krumigna, and here it acts as a Deepan, Pachan and Vatanuloman. Trifala, Anulomak Dravya. Jiraka is known Katu Ushna and Deepan Dravya. Ajamoda, it's a main ingredient of this Agnitundi Vati. It is Katu Ushna, Deepan, Pachan and Vatanuloman. So the Bhavana Dravya, that is Jambir. It's known for Deepan, Pachan and Vatanuloman. So Agnitundi Vati, it's Matra, Anupan and Kal. So let's get information about this. So Matra we can give up to 1 Gunja, and its Anupan, as mentioned, Limbu or sugar. Kal, it should be give morning and evening, and Kala Maryada given for 8 days. Its Karya, we can say it's Karya Amashay and on Pakvashay. So its action, it's Amadoshahar, Anulomak, Deepan, Kafahar, it pacifies Kapha dosha, Vata Kafahar, Pachak, Ruchivardak, Svedan. These are the major action of this particular kalpa. So Rogadikara. So this text mention all diseases where we can use Agnitundi Vati. Chiefly we can say Agnimandya, Ajirna, Visuchika, Grahani, Koshtagat Shula, Vata Vadhi, then Parinam Shul, Amavat. So we'll try to get more information about this in next slide.
So in this diagram we can say, as previous slide we have already told about this Agnimanda, Ajirna, Visuchika, Tamakshvasa, Amavata, Vatavyadi, Grahani Rog and Parinamshum Gulma. So Agnimandya, it's a very, we can say, important causative factor for formation of any disease. So Agnitundivati and Agnimandya are सो अग्निमांद्य से उत्पन्न जितने व्याधि होते हैं, तो ये सारे व्याधि का उल्लेख हमने इस स्लाइड में करने का प्रयास किया है। तो इन सारे व्याधियों में जहाँ जहाँ वात कफ संप्राप्ति रहेगी उस संप्राप्ति में हम अग्नितुंडीवटी का उपयोग आपके अदर औषधि के साथ कर सकते हैं। तो जनरली ये अग्नितुंडीवटी अग्निमांद्य में कैसे काम करती है और अजीर्ण में कैसे काम कर सकती है और कहाँ काम करती है, तो हम लोग इस स्लाइड में देखने का प्रयास करेंगे। सो अग्निमांद्य में अग्नितुंडीवती जनरली पाचक पित्तों को बढ़ाने का काम करती है। और फिर अग्निमांद्य जो उत्पन्न होता है, अगर वो कफ वृद्धि के कारण ज़्यादा होता है तो इस वटी का जो उपशय और एक्शन है वो अच्छा है। अगर इनडाइजेशन अजीर्ण में अगर लॉन्ग स्टैंडिंग रहेगा और वहाँ पे आमाशय के स्नायु को शैथिल्य उत्पन्न होता है, अनग्नि अवस्था या अग्नि संयोग नहीं प्रॉपर होता है, तो उस प्रकार में अन्न विदाह उत्पन्न होता है और उससे अम्लपित्त या गैसेस और एसिडिटी गैसेस वी कैन से ये उत्पन्न होते हैं। तो आमाशय में जनरली शूल और ब्लोटिंग, फुलनेस देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन को हम लोग विषुब्धचारण कहते हैं। तो इसमें अग्नितुंडीवती का उपयोग अच्छा होता है। इसमें ये आमाशय में और समन्वय पे काम करती है। आमाशय के स्नायु को शैथिल्य दूर करके इसका हमें अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। अन्नपचन जब होता है उसमें अन्नपचन होके ग्रहणी और पक्वाशय में जाता है और वहाँ में ये वातानुलोमन की एक्शन करके उसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है। जनरली आनाह, आदमन, शूल, अपचन ये लक्षण को भी ये कम करने में मदद करती है। और दूसरा एक व्याधि हमने देखा है विसूचिका। तो विसूचिका एक अजीर्ण का प्रकार है जिसमें आम के परिणाम कारक ये व्याधि उत्पन्न होता है, जिसमें ऊर्ध्व या अध भाग में वात का क्षोभ हमें देखने को मिलता है। इसमें आमदोष से छर्दी, ये जुलाब के द्वारा या छर्दी के द्वारा आमदोष बाहर निकलने का प्रयास होता है। आमविष उत्पन्न होता है और वो सुई जैसी चुदने जैसी वेदना होती है। इस कंडीशन में हमें इस वटी का उपशय देखने को मिलता है। अगली अवस्था देखते हैं हम लोग परिणामशूल। तो भोजन करने के बाद 3-4 घंटे के बाद जब उदरशूल उत्पन्न होता है, उसमें कॉन्स्टिपेशन रहेगा और वात प्रधान लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो इसमें हमें अग्नितुंडीवटी का उपयोग देखने को मिलता है। आमाशय और पक्वाशय के स्नायु को शैथिल्य से अन्न प्रसरण क्रिया में ऑब्स्ट्रक्शन होता है और वो ऑब्स्ट्रक्शन होने से कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन और डाइजेशन को प्रोलॉन्गनेस लगता है, तो जिसमें वात प्रधान गुल्म उत्पन्न होता है। इस कंडीशन में भी हम अग्नितुंडीवटी को समान काल में यूज़ कर सकते हैं। अगर उसे हम घी के अनुकार के साथ देते हैं तो उसका उपयोग अच्छा होता है। और परिणामशूल में अगर पित्त प्रधान लक्षण उत्पन्न होते हैं तो उस दौरान ज़्यादातर तृष्णा, दाह, ज्वर ये लक्षण रहते हैं, तो उसके साथ हम प्रवाल पंचामृत, कामदुधा, शतावरी घृत का यूज़ कर सकते हैं। बट प्रैक्टिकली ये हम लोग इसमें समझ सकते हैं कि अग्नितुंडीवटी एक उष्ण कल्प है, उसमें जो द्रव्य है ज़्यादा उष्ण है, तो ज़्यादातर हमें वात कफ प्रधान अवस्था में ही उसका उपयोग करना चाहिए। तो चलो देखिए आगे कौन से डिसीज़ में ये काम करती है। तो ग्रहणी रोग में, जैसे ग्रंथ का जो रेफरेंस है उसमें ग्रहणी के बारे में बताया है। तो ग्रहणी की हम लोग संप्राप्ति देखेंगे तो इसमें अग्निमांद्य होता है। अग्निमांद्य से अग्निदुष्टि, अजीर्ण और अतिसार, और उसमें ग्रहणी, फिर अग्निमांद्य, ये संप्राप्ति हमें देखने को मिलती है। तो अग्निमांद्य में जो एक्शन रहेगी तो कफ और वात कफ शामक जनरली रहेगी। तो इसमें अग्निमांद्य, बर्निंग इन हार्ट, आमपाचन, मलबद्धता, द्रवमल प्रवृत्ति लक्षण होते हैं। तो इसमें हमें ऑदर ड्रग के साथ अग्नितुंडीवटी का भी एक अच्छा काम है। तो जनरली हम देखते हैं जो ग्रंथों में बताया है वात व्याधि पे ये काम करती है। तो कौन से वात व्याधि पे काम करती है और कैसे काम करती है। तो इसमें एक द्रव्य आया है कुचला। तो कुचला एक द्रव्य है जो नव टॉनिक करके काम करता है। सो
इट्स एक्शन ऑन क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व्स एंड पक्षाघात, अर्धांगवात, अर्दित, ये सारे कंडीशन में वात वाहिनियों को बल देने के लिए ये अग्नितुंडी का वो उपयोग हम लोग अदर हमारे वातशामक मेडिसिन के साथ कर सकते हैं। तो एक अवस्था है आमवात, उसका भी उल्लेख जो हमारा ग्रंथोक्त रेफरेंस है उसमें आया है। तो जनरली आमवात, अग्नितुंडी वटी, ये नाम सुन के ही आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि इसका रोल क्या है। तो ये जनरली आमवात में तो आम वृद्धि होती है, तो आम पाचन करती है और बड़े हुए वात दोष को शांत करने के लिए काम करती है। तो आगे देखते हैं कौन से और कंडीशन में अग्नितुंडी वटी का रोल है। तो यहाँ पे हमने डायग्राम दिखाया है तमक श्वास का। तो ये पिक्चोरियल डायग्राम है, आपको थोड़ा सा दर्शन दिखाने के लिए है, मतलब जिससे वर्चुअल से भी थोड़ा सा फ़ायदा होता है कलेक्शन में। तो जनरली आमवात की संप्राप्ति हम देखेंगे तो अग्निमांद्यजन्य संप्राप्ति है। कोष्ठाग्नि का धात्वाग्नि कार्य से आमोदोष उत्पत्ति होती है अग्निमांद्य से, और आमोदोष उत्पत्ति होने के कारण वो प्राण व स्रोतस में जाके वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन करता है, और उसके ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण वहाँ पे ऑक्सीजन कंजप्शन कम होता है, तो डिस्निया, श्वासावरोध उत्पन्न होता है। तो इस कंडीशन में आमोदोष का पाचन करके ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करने के लिए ये हमारी वटी है, अग्नितुंडी वटी का रोल अच्छा है। तो एक रिज़ल्ट यहाँ पे है, अनवोल्टरी साइकिल में अग्नितुंडी का वो हम काम कार्य कर सकते हैं। जो रिसर्च पेपर का स्टडी किया तो उसमें एक रिसर्च पेपर देखने को मिला, और जनरली बहुत सारे स्त्री वैद्य जो है अग्नितुंडी का उपयोग अनवोल्टरी साइकिल में करते हैं। यहाँ पे भी उसका रोल जो बाकी के मेडिसिन से शोधन क्रिया है उसके साथ है। तो जनरली ये आमपाचन, अग्निदीपन का काम करती है, इसके लिए हम यहाँ पे उसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखते हैं अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो अग्नितुंडी वटी का आपने कंटेंट के बारे में देखा, तो उसमें जितने भी कंटेंट है तो क्या कंटेंट है तो वो देखें हम इसका उपयोग कॉन्ट्राइंडिकेशंस कहाँ नहीं करना है वो हम लोग समझ सकते हैं। तो जनरली इसकी जो एक्शंस है वो वात कफहर है, इस कंडीशन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पित्तज अवस्था और पित्तज वृद्धि और रक्त प्रदान व्याधि, इस संप्राप्ति में जनरली अग्नितुंडी वटी यूज़ नहीं करनी है। और जो ग्रंथ में बताया है उसमें दुर्बल व्यक्ति, बाल और गर्भिणी और सुकुमार रुग्ण, इसमें हम लोग को अग्नितुंडी वटी का उपयोग नहीं करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें लवण ज़्यादा है, तो हमें इसे हाइपरटेंशन के पेशेंट में नहीं यूज़ करना है। नेज़ल हेमरेज और हाइपर एसिडिटी एंड बर्निंग यूरिनेशन, इसमें भी हम अग्नितुंडी वटी का उपयोग ना करें तो अच्छा है। तो समरी में हम देखेंगे तो जनरली अग्नितुंडी वटी का हमने नाम सुना, तो वो जनरली अग्नितुंडी वटी का नाम क्यों पड़ा है वो हमने देखा, उसके एक्शंस देखे। तो अग्नितुंडी, अग्नि के मुख में हम ईंधन डालेंगे तो उस चीज़ को भस्मन कर देती है। तो उसी प्रकार से अन्न का जलद पचन करने के लिए काम करती है, आम को पाचन करती है, इसीलिए इसका नाम अग्नितुंडी वटी है। और जनरली आमदोषहर, अणुलोमक, दीपन, कफहर, कफवातहर, पाचक इसके कर्म है। और अग्नितुंडी का उपयोग हम कफवातहर संप्राप्ति में, जहाँ से अग्निमांद्य संप्राप्ति से जितने डिसीज़ उत्पन्न होते हैं इसमें हम लोग कर सकते हैं। बट हमें दोष का, काल का, अनुपान का ध्यान रखना चाहिए। ये अग्नितुंडी वटी के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स, स्टे कनेक्टेड विद आवर दिस ई-लेक्चर सीरीज़ आयुर्वेद अध्ययन। और मैं वैद्य रामदास गर्जे और डॉक्टर सीमा गर्जे आपका सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और आपको सभी को एक विनती करता हूँ कि ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये आपकी तरफ पहुँच रही है बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप्स, दैट इज़ आयुर्वेद अध्ययन। तो ये भारत के जितने भी हमारे बाकी वैद्य और विद्यार्थी हैं उनके पास पहुंचने के लिए आपका सहायता की ज़रूरत है। तो मैं आपको विनती करता हूं कि इस वीडियो को और पिछले भी जितने भी आयुर्वेद अध्ययन के वीडियोज़ है, आगे वाले वीडियोज़ है, आप एक पुण्य का काम कीजिए, सब वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और लोगों के पास पहुंचने में मदद हो सके। सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन बटन सो विल गेट नोटिफिकेशंस ऑफ फर्दर आवर वीडियोज़। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए कल्प के साथ और नए उसके उपयोग और व्याधि के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय आयुर्वेद।